SN2 mechanism. Then now, today you have to learn SN1 mechanism, unimolecular nucleophilic substitution reaction. Then I am going to share the screen. मैं जा रही हूँ नहीं पानी थोड़ो गाली बेंडी दे थोड़ो कुछ ना दूध Then see the screen. SN1 mechanism. One मतलब unimolecular and nucleophilic substitution reaction. उसका mechanism कैसे होता है? You know, SN2 reaction is favorable for primary alkyl halide, but SN1 reaction is favorable for tertiary alkyl halide. इसके लिए इसमें जो एग्जाम्पल हमने लिया है, it is tertiary alkyl halide, particularly tertiary butyl bromide. Particularly tertiary butyl bromide. ये देखो tertiary butyl bromide है. The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol. To give tertiary butyl alcohol. बच्चे लोग बीच में आते ही रहते हैं. ठीक है, अभी बताओ कोई, अभी मैं लेगा नहीं. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्शन का एग्जांपल जो लिया हमने, व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज NaOH, to form tertiary butyl alcohol. The reaction is first order kinetics. ये जो रिएक्शन है ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. मतलब फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये रिएक्शन का जो रेट होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट. इन सच रिएक्शन ये जो है सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट है, Br-. तो ये जो सबस्ट्रेट है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो सबस्ट्रेट है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं. ये वाला, दिस इज न्यूक्लियोफाइल and this is product and this is byproduct. तो इन सच रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है टर्शियरी वाला एग्जांपल मैंने लिया बिकॉज SN1 रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर मोर फेवरेबल फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो एग्जांपल इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो यही यहाँ पे मेंशन किया है सब. द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of the substrate only, concentration of the tertiary butyl bromide only. Hence it is called substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. अरे यार ये बच्चे लोग आते जाते रहते हैं. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसमें देखो ये जो रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K molar concentration of tertiary butyl bromide. Means the rate of reaction is, इसका रेट है, it depends on only the concentration of substrate, not the nucleophile, only the concentration of substrate. Hence it is first order reaction. In this reaction the rate depends only on the substrate, not the concentration of nucleophile. It is two step reaction. एक्चुअल मैकेनिज्म देखेंगे
तो ये 2 स्टेप में होता है रिएक्शन। बट हमने SN2 जो रन किया था वो एक ही स्टेप में होता है। Simultaneously bond breaking and bond forming takes place there, but here it is 2-step reaction. It is first order but 2-step. और SN2 था, it was second order but 1 step. Second order मतलब उसमें the rate of the reaction किसके ऊपर डिपेंड करता था? Concentration as well as concentration of substrate as well as nucleophile. But here only the concentration of substrate. It is 2-step reaction. In the first step, CX bond in the substrate undergoes the substrate under not in this reaction that depends हो गया ना, CX bond in the substrates undergoes heterolysis. इसमें क्या होता है? हेटेरोलिसिस होता है। In this bond, CBr bond में हेटेरोलिसिस होता है। You know homolysis and heterolysis. Homolysis मतलब the fusion takes place between the जैसे कि homolysis मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है CC तो it takes 1 इलेक्ट्रॉन each। और इसमें जो हेटेरोलिसिस में क्या होता है? The breaking of bond in which both the atom takes up by more electronegative substance। अभी CBr जो बॉन्ड है समझा के देता हूँ ठीक से। ये वाला बॉन्ड जो है CBr, ऐसा जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला बॉन्ड, तो ये जो है इट इज हेटेरोलिसिस। और कार्बन कार्बन का या CBr कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें होमोलिसिस होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, और इसमें हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है। अब इसमें क्या फर्क है? हमने ऑलरेडी लर्न किया है ये 11th में, होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो ये हेटेरोलिटिक फ्यूजन है। In this fusion, in this breaking of bond, more electronegative substance takes both the electron। तो ये जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे कैसे मिलता है देखो, Br माइनस और इसके पास Br माइनस आता है और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ये कार्बन के पास, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा ये है हेटेरोलिसिस। ये यहाँ पे ये हेटेरोलिसिस होता है इन दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके लिए ऐसा प्रोडक्ट हमको मिलता है। ये देखो हेटेरोलिसिस टेक्स प्लेस किया इसमें, ये बॉन्ड CBr bond gets break. It is slow reaction and after the breaking of this bond, formation of carbocation. Carbon carries positive charge and Br minus, न्यूक्लियोफाइल बन गया ये Br माइनस, ये कार्बोकेटायन बन गया आफ्टर फ्यूजन ऑफ दिस बॉन्ड, आफ्टर हेटेरोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड कार्बोकेटायन। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटायन रिएक्ट्स विद द न्यूक्लियोफाइल, ये OH माइनस अटैक करता है यहाँ पे। बट इसका जो अटैकिंग होता है ये दोनों इधर से भी हो सकता है, बैक साइड से, और फ्रंट साइड से भी हो सकता है। इसके लिए हमको प्रोडक्ट इसमें 2 मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दिखाया नहीं है बट मैकेनिज्म देखेंगे इसमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बट 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट जब हमने SN2 का रिएक्शन किया था उसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 100%। तो ये है इसका मैकेनिज्म, स्टेप 1, स्टेप 2। आते ही रहो तुम लोग, दूसरा काम नहीं है, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शेयर अनदर पेज। साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आजकल क्वेश्चन आता है, राइट? साइलेंट फीचर ऑफ SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन।
तो उसके पॉइंट हमको लिखने हैं कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज मेंशन हियर, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। SN1 क्या है? टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें 2 स्टेप दिखाई देता है, टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, इट इज टू स्टेप। Next point is there, heterolysis of CX bond in first step to form carbocation, planar carbocation intermediate। ये सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है फिर उसके बाद? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन इन द फर्स्ट सेकेंड स्टेप, इन द सॉरी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन इन द फास्ट सेकेंड स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो सेकेंड स्टेप होता है काफी फास्ट होता है, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो OH माइनस वीक भी रहेगा तो किधर से भी अटैक करके प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंशन हियर, व्हेन SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट एट पैरेलल कार्बन। पैरेलल कार्बन का मतलब मालूम है? अगर हमने ये रिएक्शन पैरेलल कार्बन में कंसीडर किया तो पैरेलल कार्बन इन एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, द प्रोडक्ट फॉर्म इज नियरली रेसेमिक। वही मैंने बताया था आपको पहले, रेसेमिक। दिस इंडिकेट्स द SN1 रिएक्शन proceeds mainly with racemization. That means both the enantiomers of products are formed in almost equal amount. मतलब 50% मैंने बोला था inversion of configuration और 50% retention of configuration, ऐसा 2 प्रोडक्ट्स में मिलता है in this SN1 mechanism। तो ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 mechanism, ऐसा। ओके, अनदर पेज। तो ऐसे ही SN1 और SN2 हमने लर्न किया। अभी लर्न करते हैं एक रिएक्शन अब तक हमने लर्न किया इसमें रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में, और वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अभी दूसरा रिएक्शन है इसमें, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये जो एलिमिनेशन होता है पर्टिकुलरली कौन सा होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन में डीहैलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। तो in this alkyl halide there is a dehydrohalogenation. Simple meaning of dehydrohalogenation is hydrogen and halogen is removed from adjacent carbon atom. Hydrogen and halogen is removed from adjacent carbon atom. ये निकल जाता है और प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। It is dehydrohalogenation. फिर वो कैसे हो रहा है इसमें देखो, when alkyl halide having at least 1 बीटा हाइड्रोजन, ये देखो ये एग्जांपल है कार्बन कार्बन का, अल्काइल हैलाइड का, तो ये कार्बन को हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन को हाइड्रोजन है। तो ये ऐसा ही इसमें सब अल्काइल हैलाइड में ये सिचुएशन रहता है, बीटा हाइड्रोजन एटम। तो ये है बीटा हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन। When alkyl halide having beta, at least 1 beta hydrogen is boiled with alcoholic solution of KOH, it undergoes removal of hydrogen atom from beta carbon and halogen X atom from alpha carbon to form removal of hydrogen atom from beta carbon and halogen from alpha carbon to form an alkene। इसमें क्या बनता है? अल्कीन। The reaction is called बीटा एलिमिनेशन। मतलब इसमें जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होता है along with अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। हैलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इजीली जाएगा क्या? नहीं, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक
KOH, अल्कोहलिक अल्कली, तभी ये रिएक्शन होता है। When alkyl halide void with alcoholic KOH in presence of base, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट इन अल्कोहलिक कंडीशन, और बनता है अल्कीन, और ये निकल जाता है BH प्लस X माइनस। तो ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अल्काइल हैलाइड का जो भी रिएक्शन होगा उसमें हमको अल्कीन प्रोडक्ट्स मिलेगा। अल्कीन देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है दिस, the reaction in which hydrogen and halogen atom is removed from adjacent carbon atom is called dehydrohalogenation। वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो कैसे होता है, मैंने पहला एग्जांपल देखो, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन reacts with alcoholic KOH, to form alkene plus KCl plus H2, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन होता है। इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म अल्कीन, टू फॉर्म इथीन। अल्कीन ही मिलेगा, जैसा रिएक्टेंट वैसे पढ़ो। तो ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, बीच के कार्बन को Br है, इट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म, ये Br जाएगा और ये कार्बन से, नहीं तो ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपीन प्लस KBr प्लस H2O। Br अगर इससे जाता है तो हाइड्रोजन इधर से जाएगा, नहीं तो इधर से जाएगा, बीटा हाइड्रोजन जाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो एक एग्जांपल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। ये देखो, ये वाला एग्जांपल, सॉरी ये वाला क्या है वो, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH। इसमें क्या हो रहा है अभी देखो, इसमें मुझे 2 प्रोडक्ट है, ब्यूट-1-इन एंड ब्यूट-2-इन। ऐसा क्यों, देखो बिकॉज Br का जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है या ये बीटा है, तो बीटा 2 कार्बन हो गए। अब तक वैसी सिचुएशन इसमें नहीं थी, बीटा 2 का इसमें था लेकिन प्रोडक्ट एक ही मिलेगा प्रोपीन में, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। देयर आर 2 बीटा कार्बन्स, तो विच हाइड्रोजन गेट्स बीटा 1 हाइड्रोजन जाएगा तो मुझे ये ब्यूट-2-इन मिला, और बीटा 2 हाइड्रोजन जाएगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला ब्यूट-1-इन। तो विच प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट अमंग बिटवीन दिस, कौन सा रहेगा? इसके लिए हमको लर्न करना होता है सेट-जेब रूल। क्या लर्न करना होता है? सेट-जेब रूल। तो क्या है सेट-जेब रूल? सेट-जेब रूल क्या होता है? इट इज ओनली फॉर सच टाइप ऑफ अल्कीन, ये जो जो अल्कीन जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन होते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसमें हमको ये सेट-जेब रूल फॉलो करना पड़ता है। हमने पहले एक मार्कोनिकॉप्स रूल लर्न किया था, मार्कोनिकॉप्स रूल। अब ये सेट-जेब रूल है, तो हमको यहाँ पे सेट-जेब रूल फॉलो करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल जो प्रोडक्ट होगा इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। 2 ब्रोमोब्यूटेन ऐसा दिया है ये, तो मुझे प्रोडक्ट मिला है ब्यूट-2-इन और नीचे है ब्यूट-1-इन। तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट? अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज मेजर प्रोडक्ट ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट-1-इन यहाँ पे नहीं मिलता है, या मिलता है तो भी वेरी लेस परसेंटेज। तो जो ब्यूट-2-इन मिलता है अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल। तो क्या है सेट-जेब रूल? सेट-जेब रूल इज दिस,
और कभी फॉलो करते हैं उसको। When mixture of products are obtained, then we have to follow Set-Zeb rule. अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं कभी-कभी, तो we have to follow Set-Zeb rule. So what is Set-Zeb rule here? In dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. अभी हमने जो देखा ब्यूट-1 और ब्यूट-2 में, तो किसको ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये समझने के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे पेन से। अभी जो ऊपर का जो प्रोडक्ट हमको मिला है, इसमें देखो ब्यूट-1 मिला है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक प्रोडक्ट मिला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये हमको ज्यादा मिल रहा है और ये कम मिल रहा है इन सच रिएक्शन। ऐसा क्यों? तो सेट-जेब रूल में क्या लिखा है देखो, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन। इसमें से कौन सा प्रेफर्ड प्रोडक्ट रहेगा? वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अभी ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इन दिस एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ऐसे जो कार्बन है, जो ऐसे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसमें जिसको ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल। अभी हम इसको देखते हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन और इधर क्या अटैच है देखो, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, और ये जो कार्बन है इसको क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो इन दिस अल्कीन देयर इज वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, दैट इज R ग्रुप। अल्काइल मतलब R, इथाइल। R अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच। बट इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे इसको अटैच है एक CH3 और इधर भी एक अटैच है CH, ये कार्बन। तो इन दिस प्रोडक्ट देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच, दो मिथाइल ग्रुप अटैच, दो अल्काइल ग्रुप अटैच। और अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो ही मेजर प्रोडक्ट है। इसके लिए इन सच अ रिएक्शन द प्रोडक्ट इज ब्यूट-2। ये नहीं होता है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है ब्यूट-2 अकॉर्डिंग टू सेट-जेब रूल। व्हाट इज सेट-जेब रूल? इन dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms। इसके लिए ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा मतलब इसमें ये ज्यादा मिलता है मेजर प्रोडक्ट, दो अल्काइल ग्रुप की वजह से। नीचे देखो एक ऐसा है, उसने ऑर्डर लिखा है देखो, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज। एक पहले इसको इरेज कर देता हूं। Sorry. The stability order of alkyl substituted alkene is, ये देखो R2C डबल बॉन्ड CR2, मतलब R2C डबल बॉन्ड CR2। तो ये कार्बन को इधर भी दो अल्काइल ग्रुप, इधर भी दो अल्काइल ग्रुप, इनसे लिखता हूं।
R2 C डबल बॉन्ड CR, मतलब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 2 अल्काइल, 4 अल्काइल ग्रुप है। तो ऐसा अगर रहेगा तो ये प्रोडक्ट पहला मिलेगा, R2C। R2 मतलब मिथाइल इथाइल भी हो सकते हैं, मिथाइल मिथाइल भी हो सकते हैं, लेकिन अल्काइल ग्रुप यू हैव टू कंसीडर दैट। ऑर्डर दिया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्केनीज R2C। ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 मिनट में मैं खत्म हो सकता है। R2C डबल बॉन्ड CR2 ग्रेटर देन R2C डबल बॉन्ड CHR, मतलब इसमें 4 है अल्काइल ग्रुप, फिर इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी, इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, R2C डबल बॉन्ड CH2, और है नीचे RCH डबल बॉन्ड CHR, इसमें भी 2 है, एक इधर है एक इधर है, और जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसमें RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH, इसमें एक ही है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वही प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सेट-शेप रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-शेप रूल। तो मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर ऐसा प्रोडक्ट है CH3 CH3 CH CBr CH CH3, ऐसा कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सॉरी, इसका अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू सेट-शेप रूल। प्लीज गिव द आंसर, अकॉर्डिंग टू सेट-शेप रूल। इसमें भी 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ये भी आ जाएगा और ये कार्बन से ये हाइड्रोजन जाएगा, नहीं तो फिर ये भी आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा। तो विच 2 प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं और कौन सा मेजर रहेगा, प्लीज गिव द आंसर, कौन सा मेजर रहेगा अकॉर्डिंग टू सेट-शेप रूल, उसका नेम भी दे दो। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, एनीवन? इसमें 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक है हाँ बोलिए, प्लीज गिव द आंसर। इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 3 मिथाइल, हाँ महक 2 मिथाइल ब्यूटूइन, करेक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और माइनर वाला 3 मिथाइल ब्यूटूइन, बराबर कि नहीं? माइनर वाला 3 मिथाइल ब्यूटूइन और मेजर वाला जो बताया अभी 1 2 3, इधर आएगा ना, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, बराबर, गुड। तो ये ऐसा हमको फॉलो करना है सेट-शेप रूल। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट टाइम में फिनिश कर देंगे, उसके बाद आई शैल स्टार्ट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाना चाहिए और आपका एग्जाम भी हो सकता है, तो आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर रहना है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? 2 मिथाइल ब्यूटूइन, गुड वन, ओके ओके, थैंक यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय। नो नो नो,
फॉर एग्जाम अभी जो भी एग्जाम होगा, अभी जितना पोर्शन होगा उतना, मतलब जगह PhD हो गया और अल्कोहल स्टार्ट हो गया, जितना पढ़ाया रहेगा उतना हो सकता है। और सेक्शन 1 का भी चालू किया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट है तुम्हारा। शायद मैम क्या ले रही है, थर्मोडायनामिक ले रही है या कुछ सॉलिड स्टेट ले रही है, वो भी रहेगा। और 25 मार्क्स का गूगल का रहेगा शायद, वैसे तो फिक्स नहीं है बट बताएंगे जो भी रहेगा। ओके ओके, थैंक यू ऑल। जय श्रीवाल आदित्य, थैंक्स।